guys, this is Prakash Singh Chauhan and I welcome you all to my Chauhan's Academy. And guys, today we will discuss your poem number 2 from your first flight book, and it is Fire and Ice, written by Robert Lee Frost. Guys, as I have already discussed about Robert Lee Frost in the previous, first poem, so I don't need to discuss again. Guys, you must have heard about desire and hatred in people. You must have some desire in yourself, and you must have felt hatred, jealousy in some people. I don't know in you or not. So, guys, we will be discussing what Robert Lee Frost is trying to tell in this poem is about fire and ice. Fire stands for desire that converts into deep desire, and finally lust. And I stands for hatred, jealousy, and indifference towards one another. This is the meaning of fire and ice in this poem by Robert Lee Frost. Now, what is desire according to you, according to me? Desire is not a bad thing. We should have desire in our life. We should, have desire to achieve our objectives and targets. But when our desire for unnecessary things and luxurious things becomes deep desire and then lust, it can create, destruction to world. It can create destruction to ourselves. And what is hatred? Nafrat karna kisi se, in order to get in the competition, in order to be alive in the competition. When we start hating people, when we start hating people because that person before us is having more than us, so we start hating them. This is what hatred means. And jealousy and indifference, किसी के लिए feeling नहीं होना. Indifference means when you are not the same of others. Some people are good and some people are bad. When somebody is having good feeling for others, somebody is not having good feeling for others. This is what we call indifference towards one another. So fire and ice stands for this. Fire for desire, deep desire, and hatred. Fire stands for desire, deep desire, and lust. I stands for hatred, jealousy, and indifference towards one another. So let's see the first stanza in this poem. There are two stanzas in this poem. The poem consists of 8 lines, two stanzas. First stanza says, "Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire." This is what the first stanza says. इस स्टैंजा में पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता दूँ. फर्स्ट लाइन में फायर का मैंने पहले ही बता दिया है टाइटल डिस्कस करते टाइम, डिज़ायर, विश और लस्ट. आइस सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब हेट, इंडिफरेंस टूवर्ड्स अदर्स. थर्ड लाइन में टेस्टेड का मतलब यहाँ पे हो गया एक्सपीरियंस, समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस योर सेल्फ और यू हैव सीन इन पीपल. दूसरों में आपने देखा है या फिर अपने आप में आपने फील किया है, उसको बोलते हैं टेस्टेड. फोर्थ लाइन में होल्ड लिखा हुआ, आई होल्ड विथ. होल्ड का मतलब होता है टू अग्री विथ, जब आप अग्री करते हैं किसी चीज़ से. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा. According to first stanza, according to the poem, poet has not experienced such things in people. Poet has not discussed with people about fire and ice. Poet has not listened to the people talking about how the world will end. But the poet is trying to tell us by his own opinion that what could be the possible cause for the end of this world. He believes that the world will end either in fire or in ice, either in desire or in hatred. This is what poet believes. And he's saying, some say that the world will end in fire, some say in ice. Poet is believing that he have heard different people, two groups of people talking about how the world will end. He has heard, or he believes that people, two different kind of people talks about the two different cause of destruction of this world is fire and ice. So uh, the poet is analyzing about the end of the world, the possible cause for the end of this world, and he provides two possible causes for the end of world, as I said, fire and ice. And poet is also believing and considering the age-old question of whether the world will end in fire or ice. फायर में एंड करेगा या आइस में करेगा. फायर बार बार मैं कह रहा हूँ, फायर मीन्स डिज़ायर, डीप डिज़ायर, लस्ट. आइस मीन्स हेट्रेड, जेलेसी एंड indifference towards others.
So the poet is talking about the two different, concept about two different cause for the end of this world, and both the cause are very different and contrasting to each other. दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. जैसे फायर एंड आइस, जब आप नाम सुन रहे हैं तो लग रहा है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं. एक तरफ डिज़ायर है, एक तरफ हेट्रेड है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं. And this is how the poet is talking about these two reasons. On the one side, the poet talks about one group of people debate that one group of people talks about fire. The desire of people will be the possible cause for the end of this world, and people those who are having deep desire and lust in achieving his objectives, they will not be thinking about others. They will not be caring about their near and dear ones. They will not be caring about their neighbors, society people, and they will just run for their own objective, and in this way people will fight with one another. This is what we call desire becomes deep desire and lust. So in this way people will harm each other, one another, and people will pull their legs in order to go ahead. So the poet is talking in the first poem that first group of people believe that it will be the heat of the fire and heat of and the passion of people. Desire means passion, junoon hona. So you guys must have heard that people say that, oh, this guy has fire in himself in achieving his goal. फायर का मतलब होता है डिज़ायर. सो ऐसा पोइट को लगता है कि लोगों के अंदर जो पैशन है, जो डिज़ायर है, जो डीप डिज़ायर है, लस्ट है, उसकी वजह से इस दुनिया का एंड हो सकता है. एंड पोइट बिलीव दैट फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल इज टॉकिंग दैट fire and deep desire of people will lead the humanity, the world to end. On the other side, poet is talking about there is one another group of people, those who talk about ice also. According to poet, in this poem, poet is believing there are two group of people. First group is talking about the fire or desire will be the possible cause for the end of this world. Second group of people is talking about ice, hatred, and this will be the possible cause for the end of people. So there is a debate kind of thing. एक डिबेट हो रहा है दो ग्रुप में लोगों का. दो ग्रुप मतलब हमारी सोसाइटी में ही हो रहा है ऐसा. पहले ग्रुप का कहना है कि नहीं, ये डिज़ायर है लोगों के बीच का, डीप डिज़ायर, लस्ट है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे का ध्यान देना छोड़ देंगे, एक दूसरे का लेग पुलिंग करेंगे और एक दूसरे को हार्म करेंगे आगे बढ़ने के लिए. दूसरा ग्रुप का कहना है कि नहीं, फायरली आइस है, जो नफ़रत है लोगों के बीच में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, किसी के अच्छा हो जाए, किसी के अच्छा अचीव कर लेने पे नफ़रत करना, इंडिफरेंस क्रिएट करना, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रखना, इमोशन नहीं रखना, इसकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी. ऐसा दो ग्रुप के लोग कहते हैं. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने डिस्कस किया कि एक ग्रुप कहता है कि फायर है जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं नहीं, आइस है जो हेट्रेड है, इंडिफरेंस है, उसकी वजह से होगी. एंड द पोएट इज सेइंग फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है या देखा है लोगों में, डिज़ायर, जो लोग डिज़ायर के बारे में कहते हैं, मतलब फायर के बारे में कहते हैं, आई होल्ड विद दोज इन फेवर फायर. तो कह रहा है जो लोग डिज़ायर के बारे में बात करते हैं, डिज़ायर मीन्स फायर, उनके साथ मैं भी अग्री करता हूँ कि नहीं, ये फायर जो है लोगों की डिज़ायर है, डीप डिज़ायर, लस्ट है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे का केयर करना छोड़ देंगे, एक दूसरे का लेग पुलिंग करेंगे, इसकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी एक दिन आपस में लड़कर. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड था. सो लेट्स सी द सेकंड स्टैंडर्ड. Now, second stanza says, but if it had to perish twice. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में it लिखा हुआ है. it मतलब वर्ल्ड के बारे में कहा गया है. सेकेंड स्टैंजा में कहा जा रहा है, but if the world had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction or end, ice is also great and would suffice. देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग्स, पेरिश का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है डीके, डाई, डिस्ट्रॉय, ट्वाइस मतलब दोबारा, अगेन, ठीक है, मैंने लिखा है अगेन, सेकेंड टाइम. फिर इसके बाद आइस का मतलब पहले ही बताया था, हेट्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने साइड में. एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट और एनफ, ये मैंने साइड में ब्रैकेट्स पे लिखा हुआ है. नाउ poet is talking, the second group of people is saying, but if the world had to perish twice, world had to be destroyed twice, dobara, if after the destruction of the world by fire, if the fire is the first possible cause for the end of this world, and if the fire will end the world, and after that if something is left behind, कुछ है जो बच जाए पीछे डिस्ट्रक्शन के बाद भी वर्ल्ड में, देन द पोएट इज सेइंग, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने एक्सपीरियंस किया है हेट रेट के बारे में भी, इंडिफरेंस
एक दूसरे के लिए जो जेलसी है लोगों के बीच में, उसे भी मैंने देखा है, अपने अंदर भी महसूस किया, लोगों में भी देखा है कि लोगों में एक दूसरे के लिए हेट्रेड बहुत है। और पोइट कहना चाह रहे हैं कि हेट्रेड मतलब आइस, जेलसी, इंडिफरेंस, इसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर दोबारा डिस्ट्रक्शन होना हो, मतलब सेकेंड टाइम, इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन बाय द फायर और डिज़ायर ऑफ पीपल, ice would be sufficient and is suffice means would be sufficient enough, ice sufficient होगा अगर दोबारा वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होना होगा तो। इसके लिए ये पोइट कहना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूँ डिस्कस। इसमें यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ हेट। हेट मीन्स पावर ऑफ हेट विच इज़ सिम्बलाइज्ड इन द पोएम बाय आइस। जैसा मैंने बताया, आइस का मतलब होता है हेट, इंडिफरेंस और जेलसी। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, मतलब पोएट ने कहना चाह रहे हैं, हेट इज़ जस्ट एज पावरफुल एज डिज़ायर मीन्स फायर। हेट भी डिज़ायर और फायर की तरह ही उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बट दिस कुड बी द सेकेंड कॉज, आई मीन ऑप्शनल कॉज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पहला कॉज नहीं हो सकता है पोइट के हिसाब से, ये बाद में ये दोबारा डिस्ट्रक्शन होना हो तब ये वर्क कर सकता है। एंड पोइट इज़ ऑल्सो टॉकिंग दैट वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, पोइट के हिसाब से डिज़ायर ज़्यादा खतरनाक है, वो जल्दी से किसी भी चीज़ को ख़राब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हेट इज़ जस्ट एज ग्रेट एज पावरफुल, वो कह रहे हैं हेट भी उसी तरह से बहुत ही पावरफुल है, वो ज़्यादा खतरनाक उसी तरह से है जैसे फायर है। Now let's discuss the central idea of this poem. The central idea around which the entire poem revolves is that love and equality, only love in amongst the people, equality to each other, one another, mutual understanding, एक दूसरे की आपसी समझबूझ, and sympathy for one and all can help in establishing peace on earth. Else, if people are not having love, equality, mutual understanding, and sympathy for each other, one another, this world will end in fire and ice. And the poet is talking that I mean, he had mentions that both fire and ice can bring probable means possible end to this world, and he talks about how we can stop the destruction and end of this world by having love, equality, mutual understanding, and sympathy towards one another. We can show our caring nature to one another. We should have emotions and care for others. Then only we can stop destruction of this world. Now let's discuss the poetic devices of this poem. यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप देख सकते हैं। फायर इज़ अ सिंबल ऑफ पीपल्स डिज़ायर दैट कन्वर्ट्स इनटू डीप डिज़ायर and that converts into lust in finding anything in the materialistic world. Materialistic means luxurious thing, I mean something that is non-living like car, house, anything that gives you luxurious life, that is materialistic world. तो फायर का मतलब ये होता है। आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेट दैट कन्वर्ट्स इनटू जेलसी एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मीन्स नो फीलिंग एंड नो इमोशंस टुवर्ड्स अदर, हर किसी का एक दूसरे से अलग सोच होना। And then no feeling, no emotion getting or achieving the target in the materialistic world. Two kinds of group. पहला है जो बिलीव करता है कि फायर में एंड करेगा, जो कि डीप डिज़ायर है। सेकंड ग्रुप कहता है कि जेलसी में होगा। ये मैंने ऐसे ही लिख रखा है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। फिर मैंने लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलीव्स और फेवर्स द फर्स्ट ग्रुप एंड सेज सेकंड रीजन विल डू द हार्म इफ समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। नाउ पोएटिक डिवाइस, देखिए आप लोग स्टैंजा देख पा रहे हो। मैंने कुछ आई हैव मेड सम अंडरलाइंस इन दी लाइंस, डिफरेंट लाइंस। सो विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस राइम स्कीम। as I have discussed in the last poem that how to find out rhyme scheme, पहले A को ढूंढ लेना है हर जगह, फिर B को ढूंढना है, फिर C को ढूंढना है। एक साथ A B C ऐसे नहीं ढूंढना है, ठीक है। पहले A को हर जगह ढूंढ लेना है, सेम साउंड करेगा लाइन के एंड में। जैसे फायर, फर्स्ट लाइन में फायर है तो A लिख दिया वहाँ पे, एंड देन आइस मिल रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। फिर डिज़ायर फायर मैच कर रहा है, फिर यहाँ A लिखे, फिर फायर है नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद हर जगह आपको अलग मिल रहा है, ठीक है। तो A हम लोगों को 3 जगह मिल चुका है, A का काम खत्म हो गया। नाउ विल नॉट थिंक अबाउट A, नाउ विल लुक फॉर B ओनली। B ढूंढेंगे हर जगह, आइस में B लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ट्वाइस, आइस ट्वाइस। फिर हमें मिल रहा है थर्ड लास्ट में आइस,
फिर उसके बाद लास्ट लाइन में सफाइस, ये सारा मैच कर रहा है, हम लोगों ने बी लिख दिया इन सारी जगह पे। नाउ विल नॉट लुक फॉर ए एंड बी, ए और बी का काम खत्म हो गया। नाउ विल लुक फॉर सी, जहाँ जहाँ बच गया है। जैसे फोर्थ लास्ट लाइन में हेट है एंड देन सेकेंड लास्ट लाइन में ग्रेट है, तो हेट एंड ग्रेट मिल गया सी। इस तरह से हम लोगों को सारे लाइंस में मिल गया। अपना नंबरिंग हम लोग कर दिए, आई मीन अल्फ़ाबेट्स लगा दिए ए बी सी। और राइम स्कीम इस तरह से हम लोग फिर फाइनली लिखेंगे। राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ ए बी सी बी। अगर आपको इफ़ यू आर आस्क्ड if you have been asked the extract from this poem, and if you have been put with only 4 or 5 lines, then the rhyme scheme will be according to like, उसी तरह से आपको बनाना है। Now see, next rhyme scheme is anaphora. anaphora शायद मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है। इट्स द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स। एक के बाद दूसरे लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में होना चाहिए। आई रिपीट, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन के स्टार्ट में, फर्स्ट में, इनिशियल्स में सेम वर्ड आएगा तो उसको एनाफोरा बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस। आई रिपीट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स के फर्स्ट में, स्टार्ट में अगर सेम वर्ड रिपीट करता है तो उसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। जैसे लाइन नंबर 1 and 2 में है सम से। देखिए पोएम के फर्स्ट और सेकेंड लाइन में सम से आया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। नाउ इंजैम्बमेंट मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, अ सेंटेंस और कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो पंक्चुएशन मार्क से एंड करता है, चाहे कॉमा हो, फुल स्टॉप हो या कुछ भी हो। व्हेन अ सेंटेंस कंप्लीट्स इन 2 or more लाइन्स विदाउट द यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस। जब एक सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा लाइन कैरी करता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए और उस बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, तो उसको हम लोग इंजैबमेंट बोलते हैं। जैसे लाइन नंबर लास्ट 3 लाइन्स हमारा एग्जाम्पल इंजैबमेंट का, जैसे देख सकते देखिए लास्ट 3 लाइन्स में, बाकी जितने भी लाइन्स है उसमें फुल स्टॉप कॉमा कहीं ना कहीं पंक्चुएशन लगा है, लेकिन यहाँ लास्ट 3 लाइन्स में देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेकेंड लाइन में आ रहा है इज़, उसके बाद बाकी का पार्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है 3 लाइन में, और इन तीनों लाइन में कहीं पे भी आपको पहले पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा है, ना फर्स्ट लाइन में, ना सेकेंड लाइन में, ना थर्ड लाइन में, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में नहीं दिख रहा है। मतलब ये इनका बिना पंक्चुएशन के कंप्लीट हो रहा है ये सेंटेंस 3 लाइन में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। द रेपिटेटिव यूज़ ऑफ, मतलब लगातार यूज़ होना, रेपिटेटिव यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive वर्ड्स। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए स्टार्ट में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड में, एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा बार किसी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे देखिए लाइन नंबर 1 2 में सम से है स साउंड एस, लाइन नंबर 4 में फेवर फायर एफ फॉर साउंड आ रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब किसी सांकेतिक रूप से किसी चीज़ को और चीज़ में बताना। जैसे फायर का सिंबल बताया गया है डिज़ायर, आइज हेट। नेक्स्ट लास्ट पोएटिक डिवाइस इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू बट सिम्स इम्पॉसिबल। फिर से मैं बता रहा हूँ, अ स्टेटमेंट दैट साउंड्स, जो सुनने में लगता है ट्रू है, बट दैट सिम्स इम्पॉसिबल टू हैपन, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है। लिखने के लिए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, मैं घोड़े को भेज दूंगा चांद पे, लिखने के लिए तो वो सही होगा सेंटेंस, लेकिन वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को पोएम में। देखिए पैराडॉक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट 3 लाइन है, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल, सॉरी ये नहीं है, एक सेकेंड, हाँ सी लाइन नंबर 1 2 3 4 5, लाइन नंबर 5 इनिशियल से देखिएगा, लाइन नंबर 5 आपका पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ कहने का सेंस क्या था, बट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस। ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल सा इसलिए लग रहा है क्योंकि दुनिया दोबारा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एक ही बार डिस्ट्रॉय होगी। कोई भी वर्ल्ड जो है 2 बार डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है। द सेंटेंस साउंड्स ट्रू बट दैट सीम्स इम्पॉसिबल टू हैपन।
So guys, this is the end of this discussion, end of the discussion of the poem Fire and Ice, and I hope you guys have understood this poem, the explanation. I will try to upload the rest of the topics, especially the poems in next up next, and I hope you guys are safe and sound. I'll upload the next topics in the my channel. Till then, take care and have a nice time.